Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how to insert an image in OpenOffice Impress. This topic deals with how to insert an image, then how to resize your image, and the last is how to rotate your image. So in order to insert an image, you can insert an image either from file or from gallery. Let's begin with from file, and the steps are: go to insert tab. Impress की बात करें, Impress में go to insert tab, select picture option. Third is now select from file option. Select your desired picture from file location and click on open button. These are 5 steps. Go to insert tab, select picture option. Now select from file option. This is an option. Select your desired picture, and the 5th one is click on next button. Let's do that. Open Office, my presentation, then empty presentation. I'm going to use next, create. Now in order to insert image, I'm going to click over here. Yes. Then go to insert, select picture, then from file option. Click on from file option. Now select your desired picture. Let's suppose desktop में है तो आप desktop में से, recent में से है तो आप recent में से, downloads में से अगर आपको उठाना है कोई पिक्चर तो go for download and select your desired image. Let's suppose यहाँ पे जो पिक्चर है उन्हें मैं यूज करना चाह रहा हूँ सैम्पल पिक्चर्स में से. Let's suppose cola and click on open button. See, this is your image. Once again, insert picture from file. Select your desired picture. This is your image. Now in this way, from file you can insert an image. Now how to insert an image from gallery? You can insert an image from gallery, and the steps are: select tools. This is your tool option. Click on gallery or click the gallery icon on drawing toolbar. ये गैलरी आपको 2 जगह मिलेगा, एक टूल सेक्शन में मिलेगा, दूसरा ड्राइंग टूल बार के उसमें ये आइकन बना होगा गैलरी. Select your image, either drag it. अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए या तो आप उसे ड्रैग करिए सीधा, और डू राइट क्लिक ऑन इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट इंसर्ट. फिर या तो आप क्लिक के ऊपर कॉपी क्लिक करेंगे या लिंक के ऊपर. देखते हैं, इसको करके देखते हैं. let's insert next slide. Now
I'm going to use tools, then gallery. Where is gallery? Tools, gallery. Where is gallery? Then this is my drawing toolbar. ये आपका बॉटम में ही रहता है. अगर ये नहीं मिलता है तो आप टूल्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आप पहले इसके बात कर लेते हैं. यहाँ पे भी गैलरी है, सेम चीज. ये देखिए गैलरी है. ये टूल्स में भी आपका गैलरी है. उस पर क्लिक करिए, नहीं दिख रहा है. ये क्यों नहीं दिख रहा है, इसका रीजन देखिए. बाय डिफॉल्ट the gallery is docked. Docked means छुपा हुआ होता है या कट होता है, cutted या cut-tailed above the Impress workspace. इस workspace के और इसके बीच में कहीं पे ये होता है. To expand the gallery, अगर गैलरी को एक्सपेंड करना है, position the pointer over the line that divides it from the top of the वर्कस्पेस. जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं टूल के ऊपर, एक चीज देखिएगा कि ये इन और आउट हो रहा है. आपका जो ये है वर्कस्पेस, ये इन और आउट हो रहा है. देखिए इन हुआ ये थोड़ा सा हल्का सा, फिर हम देखते हैं ये आउट हो गया, ये इन हो गया है ना. फिर ये कह रहा है कि इसके और इसके बीच में कहीं पे ये छुपा हुआ डॉक्ड है. तो हम कर्सर को ऐसे ले जाएंगे जहां पे ये देखिए ये हाइड है. अब कर्सर का ये ऐसे आना चाहिए, टू लाइन में डिवाइड हो जाना चाहिए कर्सर. इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे. Here is your gallery. This is your gallery. Predefined images. See, these are predefined images, मतलब जो पहले से इसमें बने हुए हैं. Environment. See, you can use this one. अब इसको इंसर्ट करना है, टू राइट क्लिक या तो ड्रैग करिए. ड्रैग करने के बाद आप सीधा ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये ऐसा आ जाएगा. इसके बाद इसको ऐसे, ये देखिए प्लस का साइन आ गया, इसलिए इसमें इंसर्ट हो जाएगा. आप छोड़ दीजिए, ये आ गया. ये हो गया पहला तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप का. सेकंड देखते हैं. राइट क्लिक, इंसर्ट और कॉपी या लिंक, दोनों में से कोई एक कर दीजिए, आ जाएगा. कॉपी कर दिया, आ गया. उसके बाद राइट क्लिक, इंसर्ट, लिंक कर दिया, आ गया. किसी के ऊपर आप क्लिक करिए, ये आ जाएगा. अब इसको दोबारा आप क्या करेंगे, इसको अनहाइड कर देंगे और यहां जाके इसको हटा दीजिए, हट गया. सो देयर आर टू वेज टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम गैलरी. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज से रिलेटेड है. How to resize an image. And the second part is rotate an image. आप किस तरह से इमेज को रिसाइज करेंगे, यानी कि उसके विड्थ और हाइट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं और उसको आप कैसे रोटेट कर सकते हैं. तो पहले हम रिसाइज की बात करेंगे. विड्थ एंड साइज को हम जब रिसाइज करेंगे, क्लिक ऑन पिक्चर. पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे. सी द ग्रीन रिसाइजिंग हैंडल्स. ओके, क्लिक किया. These are the resizing handles, green resizing handles. Click over the picture. You can resize from here to width and height.
सी सेम इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा आपको। ये मैंने बढ़ा दिया, 15 से 20 हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ये पॉइंट दीजिए, सीधा वहां पे वो पहुंच जाएगा। ये 30 कर दिया हमने, देखिए हो गया। देन यहाँ पे हमने इसको 15 कर दिया। सी आप यहां से भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप कहां से उसको रिसाइज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज 8 3 3 6 to 8 handles are there to resize your image, an image. Position the pointer over one of the green resizing handles. किसी के भी ऊपर आप ले जाइए आप, और इस तरह का साइन आना चाहिए, ऐसा एरो में कन्वर्ट हो जाएगा ये। The pointer changes shapes, giving a graphical representation of direction of resizing. बता दे रहा है कि किस में करना। क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द पिक्चर। आप पिक्चर को ड्रैग कर दीजिए रिसाइज करने के लिए। रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाई विद द न्यू साइज। आप बटन को तभी रिलीज करिए जब आप सेटिस्फाई हो। द कॉर्नर हैंडल्स रिसाइज बोथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट simultaneously, while the other 4 handles only resize one dimensional at a time. Means कि जो ये 4 कॉर्नर्स, ये इक्वली रिसाइज करते हैं आपके इमेज को, विड्थ एंड हाइट दोनों एक साथ। सी ऑल कॉर्नर्स, ऑल 4 कॉर्नर्स, चाहे आप ऐसे करें, अंदर को ले जा रहे हैं तो, है ना। बट these 4 except corners, they resize only one direction. This is called resizing process of an image. Now next is how to rotate an image. आप रोटेट भी करना चाहेंगे, है ना। तो उसके लिए है टू रोटेट अ इमेज एंड टू रोटेट अ पिक्चर, do as follows. Select the picture, not necessary. Select the picture so that green handles around it. Green handles around it. Let's suppose ये मैंने रोटेट यहाँ पे लगा दिया है ये। After that, click the rotation button on drawing toolbar. Drawing toolbar, ये रोटेशन बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है ड्राइंग टूल बार में। ये टूल बार, दिस टूल बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम द स्क्रीन, बट इट कैन बी अनडॉक्ड एंड यूज्ड एज अ फ्लोटिंग टूल बार। अनडॉक्ड मीन्स उसे हम वहां से निकाल सकते हैं और नीचे लगा सकते हैं एज अ फ्लोटिंग। जब यहाँ से वहां अगर ये टूल बार अगर आपका मूवेबल है यहाँ से यहाँ, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग टूल बार। ओके, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसका बाद ये रहा आपका ड्राइंग टूल बार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इज योर रोटेट बटन। नाउ क्लिक ओवर। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, द ग्रीन वन बिकम्स रेड वन। सी, प्रेस करिए, प्रेस करिए, प्रेस करिए, प्रेस करिए, ग्रीन से रेड होने दीजिए, रेड हो गए। 8 red circle handles replace the green square handles. ये सर्कल है और जो ग्रीन थे वो स्क्वायर में थे। देखिए,
move the mouse over one of the corner handles and mouse cursor shape will change. Click the mouse and move in the direction in which you want to rotate the picture. When satisfied, release the mouse button. आप माउस के कर्सर को वहां लेके जाइए, उसका शेप चेंज हो जाएगा. ये देखिए रोटेशन में हो गया. आप जिस एंगल में रोटेट करना चाहें आप उसे रोटेट करिए. सी इस एंगल में रोटेट हो गया. देन यहाँ से रोटेट करना चाह रहे हैं आप, इस एंगल में रोटेट हो गया. इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट एक और है. देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया. जरूरी नहीं कि ये ड्राइंग टूल बार पे आप क्लिक करें तो रेड आ जाए. आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए. सी रेड आ गया. ओके, दिस इज कॉल्ड अ पोजीशन. ये जो बटन दिख रहा है आप लोगों को, ये डायरेक्शन पोजीशन है. मीन्स अगर ये बीच में है तो ये मिडिल से ही आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. नाउ हम चाह रहे हैं कि इसकी पोजीशन यहाँ से रोटेट हो. इसके जो टेल है यहाँ से, तो मैं इसके टेल के पास इसको रखता हूँ. अब मैं इसको मूव कराता हूँ. देखिए ये इसके टेल के, अब यहाँ पे बेस क्या हो गया इसका, टेल. ये रोटेशन बेस इसका चेंज हो गया है. मैं चाह रहा हूं कि यहां से रोटेट हो, यहां से. तो मैं ये रोटेशन बेस को उठाता हूं. वेयर इज माय रोटेशन बेस? ये रहा. इसको मैं उठाता हूं और यहां लगा देता हूं. अब ये यहां से चेंज होगा. देखो सी. तो रोटेशन बेस का भी आपको जानना बहुत जरूरी है. यहां लगा देता हूं. अब ये यहां से चेंज होगा. देखिए रोटेट होगा. ये सी, मैं इसको यहां लगा देता हूं बीच में. अब ये सेंटर से होगा. अब यहाँ या मैं इसको यहाँ ले जाता हूं. तो इस तरह से आप अपने इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं, रिसाइज करा सकते हैं एंड रोटेट करा सकते हैं आप अपने इमेज को. यू कैन इंसर्ट एन इमेज, यू कैन रिसाइज एन इमेज, यू कैन रोटेट एन इमेज with the help of all these available options and tools. Goodbye students.